السلام علیکم سویٹ لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہیں، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں اور جناب ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اور تھوڑی سی آواز جو ہے وہ سردی سے ٹھٹری ہوئی ہے، تو آپ لوگوں کو جو ہے کہیں کہیں پر تھوڑی سی خرخراہٹ اور خراش کا سامنا بھی ہوگا، تو وہ موسم کا اثر ہے جناب، کیا کیا جائے۔ بہرحال برداشت کیجیے۔ بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول کا نام ہے میرا سارا زنگ اتار دو، مصنفہ ہیں افشاں آفریدی، اور آج آپ سنیں گے اس کی قسط نمبر 15۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے آخر وہ کب تک سائرہ بیگم اور اظہار صاحب کی نظروں سے چھپ سکتی تھی۔ ایک دن مزید اس نے اوپر کے پورشن میں گزارا، تاہم دوسری صبح وہ دل کڑا کر کے نیچے اتر آئی۔ شادی میں دن کم تھے، لہٰذا گھر میں سب کی مصروفیات میں یکدم اضافہ ہو گیا تھا۔ زہرا فیملی کے ساتھ شاپنگ پر نکلی ہوئی تھی۔ اظہار صاحب کی غیر موجودگی پر سکون کا سانس لیتی وہ ایک بار پھر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ سائرہ بیگم سے سامنا ہوا تو نظر جھکا کر وہ وہاں سے ادھر ادھر ہو گئی، تاہم اس نے بھی محسوس کیا کہ سائرہ بھی قدرے شرمندہ تھیں۔ شاید اس روز جو کچھ ہوا اس میں کچھ قصور انہیں اپنا بھی نظر آ گیا تھا۔ غالباً مظفر صاحب کی تنبیہ نے بھی خاصا اثر چھوڑا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب وہ ان کے سامنے آئی تو انہوں نے نارمل انداز میں اسے احوال پرسی کی تھی، جس کا جواب دیتے ہی وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ پناہ کی جو چھت اس کے سر پر قائم تھی، اسے معلوم تھا کہ اس کا ایک ستون اگر مظفر صاحب ہیں تو دوسرا سائرہ بیگم ہے، اور وہ انہیں اور ان کی مرضی کو مکمل طور پر نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یوں بھی انہوں نے جو کچھ کیا اس میں کہیں نہ کہیں اس کا مستقبل محفوظ کرنے کا امکان ضرور موجود تھا، خواہ کسی بھی وجہ سے صحیح۔ انہوں نے اس کے لیے اچھے کل کا انتظام کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ زوہا شادی تک کے لیے یہیں آ گئی تو اس کے آنے سے در مکنون کو بڑی ڈھارس ملی۔ سنی اس سے مانوس تھا اور زوہا بھی اسے لمحے بھر کے لیے اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، تاہم پھر بھی اظہار صاحب کی بے تکلفی اسے بہت تکلیف دیتی۔ سب کے خیال میں وہ محض مذاق کرنے اور دوستانہ قسم کے بندے تھے، مگر اسے ان کی آنکھوں میں عجیب طرح کی کیفیت نظر آتی تھی۔ لگتا تھا کہ جیسے نظروں ہی نظروں میں وہ اس کا ایکس رے لے رہے ہوں۔ بات بے بات اسے مخاطب کرنا جیسے انہوں نے اپنا شعار بنا لیا تھا۔ وہ کچن میں تنہا ہوتی تو موقع ملتے ہی وہاں چلے آتے، کبھی چائے کبھی کافی کی فرمائش کرتے جو اسے پوری کرنی ہی پڑتی، اور اس دوران وہ سر پر سوار اس کی طرح سیمگی کو بہت انجوائے کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہمہ وقت اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑی رہتی۔ وہ ایک بار پھر سہمی سہمی رہنے لگی تھی۔ اس وقت بھی جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی وہ قصداً اس کے بہت قریب سے اس طرح نکلے کہ باوجود کوشش کے وہ ان کے کندھے اور اپنے شانے کو ٹچ ہونے سے نہ بچا سکی۔ یہ صورتحال بہت تکلیف دہ تھی۔ احساس بے بسی سے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ پناہ کی اس جنت میں یہ پہلا سانپ تھا جس نے اس کے سکون کو ڈسا تھا۔ اسے یاد نہیں رہا کہ وہ نیچے کس کام سے جا رہی تھی۔ بے اختیار الٹے قدموں اوپر آ کر دادی کے کمرے میں بند ہو گئی، اور کئی گھنٹے اسی طرح قید تنہائی میں بیٹھی وہ اپنی بے بسی اور لاچاری کا سوگ مناتی رہی۔ کسی سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ سائرہ بیگم اپنے داماد کے معاملے میں بہت حساس تھیں، تو دوسری جانب زوہا اور ردا بھی ان کی دوستانہ طبیعت کی معترف تھیں۔ سیف کے ساتھ بھی ان کا رویہ بہت اچھا تھا۔ خولا تو خیر ان کی بہن تھی، حتیٰ کہ زارا کے معاملے میں بھی وہ بہت نفیس ثابت ہوئے تھے۔ گھر میں ہر ایک سے ہنسنا بولنا ان کی عادت تھی۔ ایسے میں واحد در مکنون ہی تھی جو ان سے خوف زدہ تھی۔ اس کے سر پر نہ باپ تھا، نہ کوئی تحفظ دینے والا بھائی، نہ دکھ بانٹنے والی بہن تھی، نہ ممتا کی چھاؤں میں چھپا لینے والی ماں۔ کھلی تجوری تھی وہ اس معاشرے کے لیے، اور اکیلی لڑکی جو مجبور بھی ہو اور لاچار بھی، اس نام نہاد مسلم معاشرے کے مسلمان مرد مومن کے لیے تفنن تباہ کی چیز ہی ہوا کرتی ہے۔ غالباً اظہار صاحب کے لیے بھی وہ ایک تفریح تھی، جبھی وہ اسے ہراساں کر کے خوب حظ اٹھا رہے تھے۔ اس وقت بھی جب وہ دادی کے کمرے میں چھپی بیٹھی تھی، انہوں نے خولا کو بھیجا تھا کہ وہ اسے سب کے ساتھ چوڑیوں کی شاپنگ کے لیے آمادہ کرے۔ جواباً اس نے قدرے سختی سے منع کر دیا تھا۔ کمون در مکنون، چلو نا اجی بھائی کے ساتھ شاپنگ پر، نہ جا کر اپنا ہی نقصان کرو گی تم۔ بڑے شاہ خرچ ہیں اجی بھائی، اور جو بھی ساتھ جاتا ہے اس کے سارے بلز وہی پے کرتے ہیں۔ دیکھنا تم ردا اور زوہا پوری جیب خالی کرائیں گی ان کی۔ بہت بڑا دل ہے میرے بھائی کا۔ خولا اس کے انکار کرنے کے باوجود مصر تھی۔ بہت پیار سے لالچ دیا۔ کوئی بات نہیں خولا باجی، میں پھر کبھی چلی جاؤں گی، آج سر میں درد ہے میرے، شاپنگ کے لیے بالکل سٹیمنا نہیں ہے میرا۔ اس کے خلوص پر وہ کچھ نرم پڑ کر بولی تھی۔ خولا نے جواباً اسے بغور دیکھا۔ کیا بات ہے دری، میں نے نوٹ کیا ہے تم ہر وقت بہت ڈری ڈری سی رہتی ہو۔
बात करो तो चौंकती हो, मुखातिब करो तो घबराने लगती हो। आखिर क्या मसला है? क्या तुम्हें हम सबके साथ इस तरह रहना अच्छा नहीं लगता? वो पूछ रही थी। दुर्रे मखनून नर्वस सी होकर होंठ काटने लगी। नहीं, ऐसी बात नहीं, बस अकेले रहने की आदत सी है मुझे। ज़्यादा लोग हों तो तबीयत घबराने लगती है मेरी। शायद ज़्यादा लोगों में रहने की कभी आदी नहीं रही ना, इसलिए। खौला की जांचती निगाहें उस पर टिकी थीं। उसे बिलाखिर कहना ही पड़ा। कुछ था उसके चेहरे पर। खौला ने दिलदारी से उसका हाथ थाम लिया। आदत डालने से डलेगी ना डियर। अगर तुम इसी तरह अकेली कमरे में बंद रहोगी तो किस तरह घुल मिल सकोगी सबसे? नरमी समेत नसीहत की थी उसने। वो लाजवाब होकर नज़र झुका गई। बहरहाल, इस वक्त अगर तुम्हारा मूड नहीं है तो ना सही, मगर मेरी बात पर ध्यान ज़रूर देना, ओके? चलो शाबाश, जरा जाकर मुंह हाथ धो। देखो तो चेहरा कितना उतरा उतरा लग रहा है तुम्हारा। उसके रुखसार को हौले से थपथपा कर खौला बाहर निकल गई। वो बेध्यानी में चलती हुई आईने के सामने आ रुकी। खुद को गौर से देखा तो एहसास हुआ कि चेहरा पर जो गुजरे साने के बायस अपनी असली शादाबी खो चुका था, और जैसे शिराजी विलास के कुछ मकीनों की मोहब्बत और खलूस की वजह से अपने खोए हुए रंग किसी हद तक वापस मिले थे, एक बार फिर खिजां की जर्दी से अट रहा था। हुस्न वहशत ज़दा होकर कुछ और कातिल अदा हो गया था। वो अपनी हसीन आंखों की वीरानी पर उदास होकर आईने के पास से हट आई। खिड़की से झांक कर देखा, इजहार साहब की रेंट पर ली हुई करोला पोर्च से गायब थी। उसने जैसे सुकून का सांस लिया और कमरे से बाहर चली आई। जानती थी कि दादी और मुजफ्फर साहब की फिक्रमंद और सायरा बेगम की नाराज़ नज़रें उसे तलाश कर रही होंगी। यूं भी वह पिछले कई घंटों से मंजर से गायब थी, लिहाजा फ़ौरन नीचे चली आई। हस्बे तवक्को सायरा बेगम के कड़े तेवरों का सामना हुआ था। कहाँ थी तुम? खौला के साथ क्यों नहीं गई शॉपिंग के लिए? लॉन्च में इस वक्त कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा फ़ौरन क्लास लगाई। मुझे कुछ ख़रीदना नहीं था इसलिए, उसने कतरे शर्मिंदगी से कहा। नहीं खरीदना था तब भी तुम्हें इस तरह मना नहीं करना चाहिए था। आफ्टर ऑल इजहार ने तुम्हें बुलाया था। किस कदर नाइस बंदा है वो। उसे तुम भी याद थी। तुम सीधे मुंह बात नहीं करती उससे, मगर उसकी बड़ाई देखो। फिर भी खौला को भेजा तुम्हें बुलाने के लिए। उन्होंने कदरे गुस्से और तादीबी लहजे में कहा तो वो चौंकी। पलकें उठाकर गहरी नज़र से उन्हें देखा। गोया उसकी इजहार साहब के लिए नापसंदीदगी सायरा बेगम की उकाबी नज़रों से महफूज नहीं रह सकी थी। सिर्फ तुमसे ही नहीं, वो तो हर एक के साथ ऐसा ही फ्रेंडली है, फ्रैंक है, मगर तुम और तुम्हारी ये 1.5 ईंट की मस्जिद मेरी समझ से बालातर है। न जाने वो उसकी नज़रों से क्या समझी कि कहे गई। जवाबन उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। तुम्हारा ये आइसोलेशन लोगों की नज़र में तुम्हें किस कदर मशकूक बना सकता है, इसका ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं है तुम्हें। वरना इस तरह गोशा नशीन होने की बजाय तुम सब लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद करती। कल शाम तक शायद उबैद की फैमिली भी आ जाए। आखिर किस किस को हम तुम्हारे इस एबनॉर्मल बिहेवियर की जस्टिफिकेशन देते रहेंगे, और फिर कब तक? उसकी खामोशी खासी मानी खैज थी। सायरा बेगम को यकबयक सख्त इश्तियाल आया तो वो बेबस सी होकर उन्हें देखते हुए कहने लगी, मैं कोशिश तो करती हूँ मगर क्या? ऐसी कोशिश जो बगैर ख्वाहिश के हो बेकार होती है। तुम कोशिश तो शायद करती होगी, मगर सच ये है कि तुम्हें नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ आने की ख्वाहिश ही नहीं है। मुजफ्फर नाहक पत्थर से सर फोड़ रहे हैं। उसके अटक अटक कर कहे जाने वाले जुमले को बड़ी सख्ती और नाराज़गी से कता करते हुए उन्होंने दुरुस्त लहजे में कहा, और सर झटक कर वहाँ से चली गई। कितनी ही देर वह चुपचाप खड़ी अपने आंसुओं को पीने की कोशिश में हलकान होती रही। हत्ता कि स्टडी से बाहर निकल कर आते अकरमा की नज़र उस पर पड़ी। साथ ही मुजफ्फर साहब भी थे। उसने तेज़ी से आंसू साफ किए थे। मुजफ्फर साहब ने जो उसे इस तरह खड़ा देखा तो बेइख्तियार उसकी तरफ बढ़े। अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे अकेली क्यों खड़ी हो? वो पूछ रहे थे। अकरमा ने बगौर दुर्रे मखनून को देखा, जिसका चेहरा इस सवाल पर फीका पड़ गया था। कोई जवाब बन नहीं पा रहा था। आप गालिबन हमसे चाय के मुतालिक पूछने आई थीं। अकरमा ने बर वक्त उसकी मुश्किल हल की थी। वो मुतशक्कर सी होकर उसे देखते हुए बेइख्तियार अस्वात में सर हिला गई तो मुजफ्फर साहब शफकत से मुस्कुरा दिए। थैंक्स बेटा। वाकई चाय की तलब होने लगी थी अब तो। स्टडी में काफ़ी देर से वो और अकरमा बैठे शादी से मुतल्लिक मामलात पर तबसरा कर रहे थे। मैं अभी बना के लाती हूँ। वो एड़ियों के बल मुड़ गई थी। किचन में कुक के अलावा अस्करी भी थी, मगर चाय उसने खुद दम दी। इजहार साहब घर पर नहीं थे, इसलिए खासी जहनी सुकून के साथ उसने ट्राली सजाई थी। बाहर आई तो पता चला सैफ, दादी और साद भाई भी आ चुके हैं। सायरा बेगम अलबत्ता अपनी कार लेकर बाहर निकली हुई थी। उनकी गैर मौजूदगी के बावजूद उसने जल्दी जल्दी कुछ रिफ़्रेशमेंट अस्करी के ज़रिए लॉन्च में भेजे। जानती थी कि साद हों या इजहार, दामादों के मामले में सायरा किस कदर तकल्लुफ़ करने की आदी हैं। अलबत्ता कुछ देर वो बाहर ना निकली तो अकरमा ने अस्करी को भेजकर उसे बुलवाया।
ان سے کہیں سب کے ساتھ آ کر چائے پئیں۔ عسکری نے اندر آ کر منوان جملہ دہرا دیا تھا۔ حکم حاکم مرگ مفاجات کے مصداق کچھ دیر بعد وہ اپنا مگ لیے باہر حاضر تھی۔ اکرما نے اس کے چہرے کو پڑھا جس پر فی الوقت سکون اور اطمینان درج نظر آ رہا تھا، اور یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ آخر یک پہ یک اسے ہو کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ پرسکون نظر آ رہی تھی، ورنہ اکثر اوقات وہ اسے خوفزدہ اور سہمی سہمی سی دکھائی دیتی تھی، جیسے ہر لمحہ کچھ ہو جانے کا دھڑکا لگا ہو۔ چہرے کا رنگ یوں اڑتا جیسے سر پر کوئی تلوار لٹک رہی ہو۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات اسے پریشان کیے ہوئے ہے۔ ممکن ہے پرپوزل والے معاملے کی وجہ سے خوفزدہ ہے کہ کہیں چچی جان انہیں اس پناہ گاہ سے نکالنے میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب چچا جان نے، دادی نے، خود میں نے بھی یقین دلایا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف ان کے ساتھ کوئی جبر نہیں ہوگا، پھر کیوں یہ اتنی اپسیٹ ہیں؟ آخر انہیں کس خوف نے جکڑ رکھا ہے؟ بظاہر ساتھ سے محو گفتگو وہ سوچے بنا نہ رہ سکا تھا، اور شاید اسی طرح اس سوال کے جواب کی تلاش میں قیاس کے گھوڑے دوڑاتا رہتا اگر زوہا، زارا اور ردا سمیت اظہار صاحب کی قدرے جلد واپسی نہ ہو جاتی۔ ان سب کے گھر چلے آنے پر در مکنون جو کسی قدر سکون سے بیٹھی تھی یکدم گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اور کسی نے تو نوٹ نہیں کیا مگر اکرما جو ذرا دیر پہلے اسی بارے میں سوچ رہا تھا، بلا ارادہ اس کی طرف متوجہ ہوا، جو زارا کے بچوں کے اندر شور مچاتے ہوئے آ جانے پر برق کسی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اکرما نے نوٹ کیا در مکنون منظر سے غائب ہو گئی تھی۔ سب کی واپسی کے ساتھ ہی اس کا اطمینان اور سکون بیک وقت رخصت ہوا تھا۔ چہرے پر گھبراہٹ اور سراسیمگی سمیت وہ وہاں سے جا چکی تھی۔ اوہ، تو یہ ہے در مکنون کا مسئلہ۔ اظہار بھائی۔ اندر آتے اظہار صاحب کی خوشباش شخصیت پر نظر پڑتے ہی اسے جیسے اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا، اور یہ جواب جس قدر آسان تھا مسئلہ اسی قدر پیچیدہ تھا۔ اظہار صاحب نے اندر داخل ہوتے ہی در مکنون کے ہاتھ کی چائے کی فرمائش کی تھی، اور خولا ان کی فرمائش کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اکرما نے گہری سانس بھر کر گھر کے خوشگوار ماحول پر نظر ڈالی اور کسی سوچ میں غرق ہو گیا۔ اوکے، اسے اندر بھیجو۔ انٹرکام پر زاویار کے آنے کی اطلاع ملنے پر نازیہ بیگم نے خوشگوار حیرت میں گھرتے ہوئے کہا تھا۔ شام کے 6 بج چکے تھے۔ وہ کار کی چابی اٹھا کر ابھی آفس سے باہر نکلنے کو تھی کہ اس کے آنے کی اطلاع ملی۔ رسیور رکھ کر ان کی منتظر نظریں دروازے پر آ ٹکی، جسے چند سیکنڈز بعد دھکیل کر اندر آتا زاویار ان کی نگاہوں کا مرکز بنا تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو؟ آؤ بیٹھو، محبت سے انہوں نے جواب دیا تھا۔ پھر بغور بھانجے کو دیکھا جس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ان کے مقابل رکھی گدیلی کرسی پر براجمان ہوتے ہوئے اس نے ہلکے سے مسکرا کر پوچھا تھا۔ ایک دم فرسٹ کلاس۔ ویسے حسن اتفاق ہے کہ میں ابھی تمہاری طرف ہی آنے کے ارادے سے اٹھ رہی تھی۔ انفیکٹ آسماں کی صبح فلائٹ لینے سے پہلے اس سے بات ہوئی تھی میری۔ کھانا تو وہ کچھ بنا کر فریز کر گئی ہیں، مگر پھر بھی تمہارے لیے فکر مند تھی۔ میں نے سوچا چلو خالہ بھانجے مل کر کچھ ٹائم ساتھ گزاریں گے۔ وہ خوش دلی سے بول رہی تھی۔ زاویار مروتاً مسکرا دیا۔ تھینکس نازو خالہ، مگر مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ لنچ تو میں پہلے بھی باہر ہی کرتا تھا، اب ڈنر بھی کر لوں گا، کوئی ایشو نہیں ہے یہ میرے لیے۔ ہاں، البتہ مل بیٹھنے کا ارادہ خاصا نیک ہے، سو یو آر موسٹ ویلکم۔ چلو، اس کے لیے تو آج تم بنفس نفیس چلے آئے ہو، میں انشاءاللہ کل چکر لگا لوں گی آسما لاج کا۔ ویسے مجھے امید نہیں تھی کہ تم آؤ گے۔ اس کے خلوص سے کہنے پر وہ خوشی سے بولی، پھر سنجیدہ ہو گئی۔ کیوں، ایسا کیوں سوچا آپ نے؟ ان کے فکرے پر اسے اچنبھا ہوا تھا۔ بھویں اچکا کر سوال کیا۔ ایسا اس لیے سوچا کہ… وہ کچھ کہتے کہتے رکیں، پھر یکدم مسکرا کر بات بدل دی۔ چلو اس بات کو چھوڑو، یہ بتاؤ تمہیں در مکنون کیسی لگی؟ اچانک اور خلاف توقع انہوں نے براہ راست سوال کر لیا تھا۔ زاویار اس انکوائری کے لیے گو کہ ذہنی طور پر تیار ہو کر آیا تھا، مگر ایک لمحہ کو زبان تالو سے لگی۔ بے شک بہت خوبصورت ہے وہ، اس میں تو خیر دو رائے نہیں ہے۔ البتہ لائف پارٹنر میں انسان اور بھی بہت کچھ ڈھونڈتا ہے۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ وہ اور تم پرفیکٹ میچ ہو؟ اس کی خاموشی کا فائدہ اٹھا کر انہوں نے اس کے کہنے کے لیے گویا راستہ ہموار کیا تھا، اور وہ جو کہنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا کھنکار کر پہلو بدلتے ہوئے کچھ آگے ہو بیٹھا۔ انفیکٹ میں بھی اسی سلسلے میں آپ سے ملنے آیا تھا۔ در حقیقت میں نے بھی اس بارے میں کافی سوچا ہے۔ بقول آپ کے کہ خوبصورتی کے معاملے میں تو واقعی وہ خاصی خود کفیل ہے۔ رہ گیا نیچر یا مزاج کا معاملہ، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ملاقات میں، اور ملاقات بھی ایسی کہ ایک فریق دوسرے کو دیکھتے ہی حواس کھو دے، کچھ خاص تاثر نہیں چھوڑ سکتی۔ نازیہ نے نوٹ کیا وہ یک پہ یک بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔
बज़ाहिर तो नॉर्मल अंदाज में बात कर रहा था, मगर उसकी बेचैनी से भरपूर नज़रें इधर उधर भटक रही थीं। तो वो खामोश हुआ तो उन्होंने भी आगे होते हुए कोहनियाँ सामने रखी टेबल पर टिकाकर उसे गहरी नज़रों के हिसार में लिया। ज़ावियर कुछ लम्हों के लिए नर्वस सा हो गया था, फिर नज़र चुराकर बोला, तो यह कि मैं एक बार फिर उससे मिलना चाहता हूँ, एक 1 to 1 मुलाकात जिसमें सिर्फ वो और मैं हूँ। झिझकते हुए सही, मगर वो कह गया था। नाज़िया को हैरत का झटका लगा था। पहले तो वो चौंकी, फिर हैरत से उसे देखा और फिर एकदम हंस पड़ी। माशाअल्लाह, इस कदर बेताबी, शौक़ी से उसे छेड़ा था। वो चींप कर फीकेपन से मुस्कुराया। नाज़िया को उस लम्हे उसकी आंखों में बेपनाह उदासी नज़र आई थी। वैसे तुम मुझसे मिलना क्यों चाहते हो? उस दिन तुम्हें देखकर वो बहुत नर्वस हो गई थी, कहीं इस वजह से? प्लीज़ नाज़ो खाला, भूल जाएं उस बात को, मैं भी भूल गया हूँ। बेचैनी से उनकी बात कता करते हुए उसने दिल ही दिल में सख्त पशेमानी महसूस की थी। एक वो ही जानता था कि दुर्रे मकनून को किस बात ने हवास खोने पर मजबूर किया, और बार बार इसका तज़किरा उसके ज़ख्मों को गोया असर नो ताज़ा करने का सबब बन रहा था। अच्छा मेरे बेटे, भूल जाती हूँ। उसके अंदाज पर वो फिर से शौक हो गई थी। वैसे तुम्हारी वजाहत और शख्सियत इस कदर बारोब होगी कि सिनफ़े नाजुक के होश ही जाते रहेंगे। अगर जो ज़रा सा भी अंदाज़ा होता इस बात का, तो पहले से उस बेचारी को कुछ सद्देबाप करने का मशवरा ज़रूर देती मैं। वो उसे छेड़े बगैर नहीं रह पा रही थी। जवाबन उसने मसनूई गुस्से से उन्हें देखा। इनफ, अब अगर आपने मज़ीद इस किस्म की गुफ्तगू की तो मैं फ़ौरन से पेशतर यहाँ से चला जाऊँगा। धमकी खासी कारगर रही। नाज़िया ने बेइख्तियार हंसी दबाई थी। ओके ओके, नहीं छेड़ती। कानों को हाथ लगाते हुए वो बज़ाहिर संजीदा हो गई थी, मगर नज़रें हनूज शौक थीं। अब बताओ क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? कहा तो है मैं पर्सनली मिलना चाहता हूँ उससे, मगर बगैर मुदाखलत के। वो ख़तरनाक हद तक संजीदगी से बोला था। नाज़िया जैसे सोच में पड़ गई। क्या हुआ, कुछ मुश्किल है इसमें? उनकी खामोशी पर वो कदरे बेकरारी से पूछ बैठा। नहीं, मेरे ख्याल में शिराजी फैमिली ब्रॉड माइंडेड है और ओपन है हर मामले में। गहरी सांस भरकर उन्होंने कहा था। साथ ही जहन में दुर्रे मकनून के उस रोज़ वाले रद्द अमल पर कुछ तशवीश सी उभर रही थी। तो फिर उसने बहुजलत सवाल किया। फिर कुछ नहीं, मैं तुम्हें कल सायरा से बात करके बताती हूँ। इनफैक्ट उसकी बेटी की शादी है आजकल में, खासी मसरूफ़ है वो। देखती हूँ कि वो टाइम निकाल पाती है कि नहीं। उन्होंने साफ कोई से कहकर बात ख़त्म की तो ज़ावियर बालों में उंगलियां फेरकर किसी सोच में गुम हो गया। कम ऑन, डोंट वरी। अगर आजकल में वो टाइम ना निकाल सकी तो भी रिदा की शादी के हर फंक्शन में तुम और आसमा मेरे साथ इनवाइटेड हो। तुम्हें काफ़ी वक्त मिलेगा उससे इंटरेक्ट करने को, एंड आई थिंक ये तुम दोनों के लिए बहुत अच्छा भी रहेगा। उसके इस तरह सोच में खो जाने से न जाने उन्होंने क्या समझा कि फ़ौरन तसल्ली के तौर पर कहा था। ज़ावियर ने ख्यालों की योरिश से निकलकर उनकी तरफ तवज्जो मरकूज़ की और बमुश्किल मुस्कुराया। आई होप सो। तो फिर मैं चलता हूँ। उसने जाने को पर तोले। ठहरो, साथ ही चलते हैं। उन्होंने भी कीचेन उठाई और शोल्डर बैग उठाकर कंधे से लटका लिया। सी यू देन, मैं कल आपकी कॉल का वेट करूँगा। अगर पॉसिबल हो तो कल इसी टाइम जगह वो जहाँ चाहें मैं पहुँच जाऊँगा। चलते चलते उसने कदरे ज़ोर देकर कहा। दर हकीकत लाशऊरी तौर पर उसे यकीन था कि दुर्रे मकनून की तरफ से ज़रूर मज़ाहमत होगी, इसलिए अपनी जानिब से उसने कसदन बेताबी का इजहार किया था। नाज़िया बावजूद कोशिश के इस बार अपनी हंसी पर काबू ना पा सकी। हद है ज़वी, कहाँ तो शादी को राज़ी ना थे और कहाँ ये हाल है। शौक़ी से कह डाला। आप नहीं समझेंगी खाला, ये किसी की ज़िंदगी का मामला है। अब के वो भी फीकेपन से मुस्कुराते हुए सर पर हाथ फेर कर बोला। मैं सब समझती हूँ बच्चे, ये बाल हमने धूप में सफ़ेद नहीं किए। उनकी बज़ला संजी इस वक्त अरूज पर थी। अपनी बहन और भांजे के लिए दिल में खसूसी जगह थी उनके। प्यार से उसके कंधे पर हाथ फेरा था। उनकी मोहब्बत पर एक भरपूर तबस्सुम उसके संजीदा चेहरे को छू गया। इस दौरान वो दोनों चलते हुए अपनी अपनी गाड़ियों तक चले आए। नाज़िया इसरार से बोली, मेरा ख्याल है आज तो मेरी तरफ चले चलो। घर पर तो यूँ भी कोई नहीं है। अच्छा है दोनों खाला भांजे मिलकर तुम्हारी मामा की गीबतें करेंगे। बात ही ऐसी कही थी उन्होंने कि वह मुबहम सा मुस्कुरा दिया। गॉसिप तो मेरा भी फेवरेट हॉबी है, मगर आज नहीं कल। अगर आपने मेरी मीटिंग फिक्स कर दी तो फिर कल दोनों साथ ही घर चले आएंगे। तो गोया रिश्वत दी जा रही है। नाज़िया मुस्कुराई। क्या करें, मजबूरी है। वो सर खुजाकर शौरी खुशगवारियत से बोला तो वो भी हंसती। ओके, कल मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। किसी गहरी सोच समेत उसने उन्हें जाते हुए देखा था, फिर बददिली से कार का दरवाज़ा खोलकर खुद भी अंदर बैठ गया। आसमां लाज जाने को दिल नहीं चाह रहा था। कितनी ही देर वो बिला ज़रूरत सड़कों पर पेट्रोल फूंकता रहा।
तो फिर तुम आ रही हो ना खौला? आ जाऊंगी यार, यूँ भी यहाँ करने को रखा ही क्या है। तारिक भैया अगले हफ्ते आ रही हैं छुट्टी पर, जब तक बस मम्मा की फिटकारे ही मुकद्दर है। आजकल तो यूँ भी उन्हें मुझे कुकिंग सिखाने का जुनून सवार हो गया है। खौला के इसरार पर उसने दुखड़ा रोया था। खौला को बेइख्तियार हंसी आ गई। चलो अच्छा है, कोई ढंग का काम तो सीखा तुमने। अच्छा ही है, किसी का भला हो जाएगा। वेरी फनी। शहरीन बुरी तरह चिढ़ी थी। तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारी भाभी नहीं बन रही मैं। चिंचिलाकर कुशन उसे खींच मारा, जिसे उसने बआसानी कैच कर लिया था। क्या पता बन ही जाओ। शौकी से आंखें घुमाते हुए उसे मजीद छेड़ा तो वह चौंक कर उसे देखने लगी। मतलब ये कि जवी भी तो मेरा कज़न है, लिहाजा उसके रिश्ते से तो मेरी भाभी बन तो सकती हो। मानी ख्यास नज़रें उस पर जमाई तो वह चिंचला गई। अच्छा लतीफ़ा है। सर झटका और फिर यकदम कुछ सोचकर उसने चौंकते हुए खौला को देखा था। तो गोया तुमने तारिक भैया के हक में अपनी रजामंदी दे दी है। हैरत और तफक्कुर से शहरीन की आंखें कुछ ज़्यादा ही फैल गई थीं। खौला को उसे देखकर हंसी आ गई, जिसे वो साफ दबा गई। अब इसका फैसला तो अजी भाई ही करेंगे। लापरवाही से कहते हुए उसने इधर उधर निगाहें भटकाई थीं। क्या मतलब अजी भाई फैसला करेंगे? और तुम्हारी पसंद नापसंद उसका क्या? तुमने तो अकरमा शिराजी के लिए ज़ारा भाभी को हाँ भी कह दिया था ना। मैंने अकरमा के लिए हाँ नहीं की थी, बस ये कहा था कि जैसा वो और अजी भाई ठीक समझे करें। अब अगर अजी भाई यही ठीक समझते हैं कि मैं फैमिली में शादी करूं तो शहरीन ने बड़ी उम्मीद से उसे देखा था। तो मैं इसके खिलाफ नहीं। उसका जवाब उसे बेहद मायूस कर गया था। शिट, यानी तुम निकली बुज़दिले आज़म। माय गॉड, मुझे तुमसे, खौला अंसारी से ये तवक्को ना थी। वह एकदम गुस्से में आ गई थी। खौला ने धीरज से उसे देखा और मुबहम सा मुस्कुरा दी। क्या मतलब? भला तुम्हें मुझसे क्या तवक्को थी इस ज़मन में? यही तवक्को थी कि कम से कम तुम अंसारी फैमिली की बाकी लड़कियों की तरह इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करोगी। कम से कम कुछ तो मज़ाहमत करनी चाहिए थी तुम्हें। उसने बिला तवक्कुफ़ मलामत की थी। खौला ने संजीदगी से मुंह बनाया। ओफो भाई, मुझे कौन सा अकरमा शिराजी से अफलातूनी इश्क हुआ है जो मैं अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ जाऊँ? हद हो गई है। इधर ज़ारा भाभी हैं कि मुझसे खफा हैं, तो इधर तुम। हाँ, तो इसमें खुश होने वाली बात भी कौन सी है? आखिर कब तक ये फजूल रिवायात हमें जकड़े रहेंगी? क्या ख़ानदान में शादी करना ज़रूरी है? उसने गोद में रखे कुशन पर मुक्कियाँ बरसाईं। खैर, इसमें बुराई भी तो कोई नहीं। खौला ने अपना मौक़िफ़ बयान किया। तो फिर अजी भाई और ख़ुद शहरयार मामू की शादियाँ कैसे हो गई फैमिली से बाहर? उनकी दफ़ा किसी को याद नहीं आई ये कदीम पैरासाइट रिवायात? वो जलकर बोली थी। खैर, अजी भाई का तो सबको पता है कि उनके जोड़ की ख़ानदान में कोई लड़की नहीं थी, इसलिए बाहर देखना पड़ा। रह गए शहरयार चचा, तो उनकी शादी का अंजाम ही तो इस रिवायत को और भी सख्त करने का मौजिब बना। जिस तरह आसमा चची डाइवोर्स ले गई, अंसारी फैमिली के लिए उसे भूलना आसान नहीं। खौला ने मजबूत लहजे में जवाबन कहा तो शहरीन ने उसे बगौर देखा। उसकी किसी अदा से नहीं लग रहा था कि वह अपने भाई के खिलाफ जाने की ख्वाहिश रखती है, ना ही उसे किसी बात पर एतराज़ था। हाँ वो तो है। शहरीन का अंदाज सुस्त सा था। लिहाजा माय डियर फ्रेंड कम कज़न, तुम भी मैमूना पुप्पो के कहने पर सर झुका दो। मेरा ख्याल है जवी सिर्फ़ और सिर्फ तुम जैसी के साथ ही निभा सकता है, बल्कि यूँ कहना ज़्यादा दुरुस्त होगा कि सिर्फ तुम ही उसके साथ निभा कर सकती हो, वरना उसमें कोई गट्स है नहीं। शरारत से हंसते हुए खौला ने गोया उसके ज़ख्म छेड़ दिए थे। शहरीन ने तिल मिलाकर दोनों हाथों से उसका गला पकड़कर दबा दिया, जिसे बमुश्किल ही वो छुड़ा सकी। यू टू ब्रूट्स, मैं समझती थी कि कम से कम तुम तो मेरा साथ दोगी। सॉरी, मैं अपनी मतवक्का सास के खिलाफ जाने का रिस्क फ़िलहाल नहीं ले सकती। एक बार तुम्हारे घर आ जाऊं फिर सोचूंगी। वो लापरवाही से बोली तो शहरीन ने उसे धमोका जड़ दिया। और जो इस दौरान मामा ने तारिक भाई के वलीमे वाले दिन ही मुझे रुखसत कर दिया तो? ओ कम ऑन यार, शादी और वलीमे में एक दिन का गैप तो अमूमन होता है ना। इस दौरान सोच लेंगे कुछ। चलो शाबाश, अब तुम उठो और रिदा की तरफ चलने की तैयारी करो। बेफिक्री से कहते हुए उसे हाथ पकड़कर उठाया तो वह बिलबिला उठी। खौला, तुम घटिया इंसान, यहाँ मेरी ज़िंदगी और मौत का मसला चल रहा है और तुम्हें शादी की पड़ी है। ओफ, वो कहा तो है कि सोच लेंगे इस बारे में भी। बस अब तुम उठो और अपनी वार्डरोब से कल के लिए कोई अच्छा सा इवनिंग ड्रेस पसंद करो। उसे खींच कर ज़बरदस्ती वार्डरोब के सामने ला खड़ा किया तो शहरीन बेबसी से घूर कर रह गई। शादी के लिए जोड़ों से लेकर ज्वेलरी तक उसकी सारी तैयारी जोहा और सायरा बेगम के हाथों मुकम्मल हो चुकी थी, मगर आज अचानक ही उन्हें उसके लिए नए ड्रेसेस का ख्याल आया था और नतीजतन उसे शावर लेने का ऑर्डर देकर वो खुद भी तैयार होने चली गई। आजकल नया ड्राइवर रखा था उन्होंने अपने लिए,
लिहाजा दुर्र मखनून की तवक्को के खिलाफ वो उसे बाल ड्राई करने की मोहलत बमुश्किल देते हुए खासे उजरत में उसके साथ कार में आ बैठी थी। रिदा की फ्रेंड्स घर पर आई हुई थीं, साथ ही करीबी रिश्तेदारों की रिदा की हमउम्र लड़कियां भी आज चली आई थीं। उन सब के होते हुए भी सायरा बेगम उसे शॉपिंग के लिए अपने साथ घसीट लाई। उनकी इस मेहरबानी के पीछे क्या मुहर्रिक है? इससे अनजान वो सायरा बेगम के पीछे किसी मामूल की तरह चलती हर उस चीज़ के लिए सर हिला गई जिसे सायरा बेगम ने उसके लिए पसंद किया था। हत्ता के ब्लैक और मैरून के कंट्रास्ट वाले खूबसूरत सूट को पसंद करने के बाद जब उन्होंने उसे ट्राई करने के लिए भेजा, उसे कतन अंदाज़ा ना था कि वो उसे जावियर अंसारी से मिलवाने ले जाने वाली हैं। ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत लग रहा है तुम पर यह ड्रेस, फिटिंग भी गजब की आई है। इसके साथ गालिबन ये इयररिंग्स अच्छे लगेंगे। मैरून नगीरों वाले छोटे छोटे आवीज़े थे। जी हाँ, मगर छोड़ो और इन्हें भी पहन लो। इनफैक्ट घर जाने से पहले मुझे क्लब जाना है, चंद मिनट काम है वहाँ। एक तो जब से क्लब की प्रेसिडेंट बनी हूँ चकरा कर रह गई हूँ मैं। उसकी बात कता करते हुए उन्होंने हुक्म सादिर फरमाया, साथ ही शोल्डर बैग से वॉलेट निकालने लगी। यह इशारा था उसे खामोश रहने का। वो बादल नखासा इयरिंग्स पहनकर उनके पीछे चल पड़ी, जो अब काउंटर की तरफ बढ़ गई थीं। कपड़े चेंज करने की इजाज़त उन्होंने दी नहीं थी। काउंटर के साथ लगे कदादम आईने पर नज़र पड़ी तो एहसास हुआ इस सूट और ज्वेलरी में वाकई वो जच रही थी। बाल बनाने की मोहलत तो उन्होंने दी नहीं थी, जो इस वक्त ताज़ा शैम्पू करने के बायस खूब चमक रहे थे। वापसी पर खामोशी रही। आधे घंटे की ड्राइव के बाद वो दोनों क्लब में दाखिल हो रही थीं। हस्बे साबिक दुर्र मखनून का दिल कानों में धड़क रहा था, मगर सायरा बेगम को परवाह नहीं थी। उनकी मतलाशी नज़रें क्लब के लॉन में बर्फ की सी तेज़ी से घूम रही थी। गोहरे मकसूद वहीं मौजूद था। ज़रा फासले पर उन्हें लॉन के कोने में लगी मेज़ पर नाजिया और जावियार बैठे नजर आ गए थे, जिनके पुरजोर इसरार पर उन्हें उसे यहाँ लाते ही बनी थी। जावियार की दिलचस्पी ने उन्हें मजबूर कर दिया था। इधर आओ। अचानक उसका हाथ थामकर वो लॉन के उस गोशे की तरफ चल दी जहाँ वो दोनों उनके मुंतजिर थे। दुर्र मखनून बेबसी से नज़रें झुकाए उनके अकब में चली आई और इससे पहले कि वो कुछ सोचती, सायरा बेगम ने उसे अचानक हाथ पकड़कर अपने बराबर ला खड़ा किया। दुर्र मखनून की नज़रें बेइख्तियार सामने की तरफ उठी थीं और फिर जैसे हैरत और दुख से फटी की फटी रह गईं, जबकि सायरा बेगम बहुत पुरउम्मीद थी। जावियार की आंखों की चमक उनकी निदामत मिटा गई। अस्सलाम वालेकुम दुर्र मखनून, क्या हाल है, कैसी हो तुम? नाजिया ने खुशगवार मूड में उठकर मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया था। जावियार भी उनके साथ ही उठ खड़ा हुआ था। उसकी नज़रें साथ मौजूद खवातीन की मौजूदगी का ख्याल किए बगैर बेकरारी से दुर्र मखनून के चेहरे पर आ जमी थी, और उसकी यह बेकरारी सायरा महसूस कर गई थी। नमकीन पानी का गोला दुर्र मखनून के हलक में आ अटका। वो महज सर हिला सकी। अलबत्ता सायरा बेगम को बहुत गिला आमेज नज़रों से देखा था उसने। क्या हाल है बेटा, कैसे हैं आप? सायरा बेगम को दुर्र मखनून के गूंगेपन पर यकदम बहुत ताव आया था, मगर मजबूरन बर्दाश्त करके तेज़ी से जावियार को मुखातिब कर लिया, जिसकी बेकरार नज़रें उनके दिल में फूल खिला गई थीं। मैं ठीक हूँ, दुआ है आपकी, मुअद्दिब सा कहकर उनके सामने कदरे झुका था। दुर्र मखनून ने तड़प कर नज़र उठाई थी उस लम्हे। क्या तुम्हें भी किसी की दुआ लग सकती है जावियार अंसारी? उसकी निगाह थी कि भड़का हुआ शोला। जावियार अंसारी को लगा उसका पूरा वजूद जैसे भस्म हो जाएगा। भाई हमारी दुआएं तो हैं ही अपने बच्चों के लिए, मोहब्बत और शफकत से कहकर उन्होंने उसकी चौड़ी पुश्त थपकी तो दुर्र मखनून चकराते सर को बमुश्किल संभालने की खातिर कुर्सी की पुश्त थाम गई। जावियार ने जैसे टूट कर उसके सरापे पर नज़र डाली थी। मेरा ख्याल है नाजिया, हम अंदर चलकर बैठते हैं, बच्चे हमारी कंपनी में बोरियत महसूस करेंगे। यूँ भी मुझे कुछ ज़रूरी काम है यहाँ। ज़रा देर की खामोशी के बाद सायरा बेगम ने ही कहा तो जावियार ममनूनियत से उन्हें देखकर मबहम सा मुस्कुरा दिया, जबकि साथ खड़ी दुर्र मखनून ने तड़प कर उनका हाथ पकड़ लिया था। ऑफ कोर्स, मुझे भी तुमसे एक पर्सनल काम था। अच्छा है, हम अंदर चलकर बात करते हैं। नाजिया की नज़रें दुर्र मखनून के झुके सर को देखकर शर्म पर महमूल करते हुए मुस्कुरा रही थीं। चलो बेटा दुर्र मखनून, तुम कुछ देर जावियार को कंपनी दो, हम अभी आते हैं। दुर्र मखनून के दुपट्टे की आड़ में छुपे उसके हाथ से उन्होंने बमुश्किल अपना हाथ छुड़ाकर अंदर ही अंदर दांत पीसते हुए बज़ाहिर खुशगवारी से कहा था, मिमी नहीं प्लीज़। यकदम उन दोनों की तरफ पुश्त करते हुए उसने सायरा बेगम की तरफ रुख मोड़कर बहुत लजाजत से कहा था, अरे इसमें इस कदर शाये होने की क्या ज़रूरत है? चलो शाबाश, बैठो यहाँ। मुकाबिल खड़े जावियार और नाजिया बेगम की नज़रें उनके चेहरे पर जमी थीं। उन्हें बर्दाश्त से काम लेना ही था। नहीं प्लीज़, वो रो देने को थी। दुर्र मखनून, बिहेव योरसेल्फ, चिल्लाकर झुकते हुए उसे डांटा। चुपचाप बैठो यहाँ। फिर से तमाशा बनवाया तो याद रखो शिराजी विलास की दहलीज चढ़ने नहीं दूंगी तुम्हें। उसके कान के करीब बहुत मध्यम आवाज़ में तकरीबन गुर्राई थी वो। दुर्र मखनून तड़प कर उन्हें देखने लगी थी। छोड़ो मेरा हाथ। गुस्से से उसे घूरकर हाथ छुड़ाया और फिर यकदम सर ऊंचा करके नाजिया को देखकर मुस्कुरा दी। कमान नाजिया,
आओ चलें। हदायत देकर सायरा रुकी नहीं थी, तेज़ी से अंदर की तरफ कदम बढ़ा गई तो नाजिया ने गहरी नज़र से दुर्रे मखनून को देखा और उसका शाना थपथपाकर नरमी से उसे जावियार के सामने वाली कुर्सी पर ला बिठाया, जहाँ कुछ देर पहले वो खुद विराजमान थी। मेरा बेटा बहुत नाइस है, तुम्हें बोर नहीं होने देगा। चलो शाबाश, तुम लोग बातें करो, मैं ज़रा देर में वापस आती हूँ। उसके कंधों पर दोनों हाथों से नरमी से दबाव डालते हुए उन्होंने बहुत प्यार से कहा था। दुर्रे मखनून को लगा उसके डूबते दिल को कदर ढारस मिली थी उस लम्हे। फिर उसने डबडबाई नज़रों से नाजिया बेगम को ओझल होने तक देखा था। जावियर बहुत तासुफ से उसे देख रहा था, जिसे तबाह करने के दुख ने उसे धीरे धीरे अंदर से खा लिया था। वो यूं बैठी थी जैसे अभी गिर पड़ेगी। शदीद रंज ने उसे गूंगा कर दिया था। वो उसे एक नज़र देखने की रवादार ना थी। कितने ही लम्हे चुपचाप सरक गए। वो सामने बैठे शख्स से परे कहीं दूर किसी गैर मरई नुक्ते पर नज़र जमाए बैठी थी। आंसू बिना किसी रुकावट के उसके चेहरे को भिगोए जा रहे थे। जावियर अंसारी का फौलाद ऐसा दिल उस लम्हे गोया पिघलने को हो गया था। दुर्रे मखनून। कितनी ही देर बाद वो बोला तो यूं लगा जैसे किसी गहरे कुएं से आवाज़ आई हो। दुर्रे मखनून उसी तरह बैठी थी। उसके पुकारने पर भी कोई जुम्बिश नहीं हुई थी उसके साकित वजूद में। प्लीज़ कुछ कहो, कोई गाली, कोई नफ़रत भरा जुमला, कोई बद्दुआ, कोई तस्लील, कुछ तो कहो। उसकी खामोशी पर वो जैसे इल्तिजाइया बोला था। दुर्रे मखनून किसी संगी बुत की तरह इस्तादा थी। जावियार ने उसे देखा तो दिल रो दिया। मैं जानता हूँ जो कुछ मैंने तुम्हारे साथ किया उसे माफ़ करना तो दूर की बात, उसे भुलाना ही नामुमकिन है। तुम्हारा मुजरिम, तुम्हारा गुनहगार हूँ। वो यूं ही चुप रही तो कुछ देर बाद उसे यकटुक देखते हुए वो फिर से बोलने लगा था। लहजा दर्द में डूबा हुआ था। जो चाहो सज़ा दे सकती हो। यकीन करो, तुम्हें बरज़ख में धकेल कर मैं अभी दोज़ख में चला हूँ। कोई दिन, कोई लम्हा उस पछतावे और एहसास जुर्म से खाली नहीं गुजरा कि मैंने तुम्हें तबाह किया है। तुम्हारी बर्बादी का जिम्मेदार मैं हूँ। नमी जावियार की आंखों से बह निकली थी। बुत में ज़रा सी हरकत हुई। दुर्रे मखनून की नज़रें गैर मरई नुक्ते से सरक कर ना चाहते हुए भी सामने बैठे अपने कातिल पर आ रुकीं। उसने देखा वह लंबा चौड़ा मर्द रो रहा था। लेकिन यकीन करो दुर्रे मखनून, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था। तुम्हारे लिए मेरे दिल में बहुत पाकीज़ा जज्बे थे और हैं, मगर तुम समझ नहीं सकती कि एक मर्द जो बहुत मजबूत और ताकतवर होता है, अपने दो जज्बों से, सिर्फ इन दो जज्बों से मात खाता है, हार जाता है। एक हवस और दूसरे मौत का खौफ। और जब किसी मर्द पे ये दो जज्बे सवार हो जाएं तो फिर वो इंसान से महज आदमी बन जाता है और आदमी से हैवान। कहते कहते उसकी आवाज़ जैसे डूब सी गई थी। दुर्रे मखनून ने देखा वो नज़र झुकाए जैसे खुद से बात कर रहा था। ब्लैक डिनर सूट में मलबूस वो स्मार्ट जावियर अंसारी उस लम्हे एक ऐसे शिकस्त खोरदा जर्नैल की मानंद लग रहा था जिसने ना सिर्फ जंग हारी थी बल्कि दुश्मन के हाथों बुरी तरह जलील होने के लिए उसे भरे बाजार में खुली चौक में कोड़े लगाए जा रहे थे। मगर बड़ी अजीब सी बात थी कि दुर्रे मखनून को ये सब देख कर ज़रा भी खुशी नहीं हुई थी। मुसर्रत के किसी एहसास ने उसके दुखी दिल को नहीं छुआ था। उसका कातिल पशेमान था। हाय उस ज़ूद पशेमां का पशेमां होना। मगर उसकी शर्मिंदगी, उसका एतराफ़ गुनाह, उसका इकबाल जुर्म, क्या दुर्रे मखनून की वो खोई हुई इस्मत, उसकी वो हसीन ज़िंदगी, उसके वालदैन, क्या कुछ भी वापस ला सकता था? आप क्या चाहते हैं? आप क्यों बुलवाया है मुझे यहाँ? बमुश्किल कुछ कहने की हिम्मत की तो फिक्रा मुकम्मल होने से पहले हाँप गई वो। जावियर ने तड़प कर बड़ी शाकी नज़रों से उसे देखा था। क्या मेरे चाहने की कोई हैसियत है तुम्हारे नज़दीक? बड़ी आस से सवाल हुआ था। दुर्रे मखनून को लगा उसके गले में कांटे उग आए हों। प्लीज़ मुझे परेशान मत करें, कहें जो कहना है। वो वाकई रो दी थी। जावियर के सीने पर जैसे किसी ने भारी सिल धर दी उस लम्हे। दुर्रे मखनून का एक एक आंसू उस सिल के वज़न को बढ़ाता जा रहा था। दुर्रे मखनून, प्लीज़ मत रो इस तरह, मेरा दिल फट जाएगा, वो बेकरारी से बोला था। दुर्रे मखनून ने बेदर्दी से रुखसार साफ करते हुए उसे सुर्ख आंखों से यूं देखा जैसे जलाकर रख देना चाहती हो। उस दिन मेरे आंसू तो क्या, मेरी चीखें, मेरी मिन्नतें सुनकर भी आपको रहम नहीं आया था, तो फिर आज ये ड्रामा क्यों? किस लिए? बोलिए। वो एकदम बिफर कर बोली थी। शदीद गुस्से के बायस उसका सारा जिस्म कांप रहा था। गुस्सा आया था उसे। कितने सालों बाद वो यूं चीखी थी। शुक्र था कि लॉन में सिर्फ इक्का दुक्का दूर दूर टेबल्स लगी हुई थीं। लोग भी बाहर एक दो ही थे, वो भी खासे फासले पर। यूं भी लॉन के अगले सिरे पर बने स्टेज पर खूबसूरत म्यूज़िक चल रहा था। दुर्रे मखनून की आवाज़ जैसे उस मधुर शोर में दब सी गई। जावियर ने मुजरिमाना अंदाज में सर झुकाकर उसे सुना था। तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हें मैंने बर्बाद किया है। यही वजह है कि अब वो जैसे थक कर रुका था। यूँ लगता था जैसे बोलने की सक्कत नहीं रही हो या कहने को अल्फाज और हिम्मत दोनों ने ही साथ छोड़ दिया हो। अब क्या? मुड़ी हुई घनी पलकों वाली आंखों में जैसे गैज़ो गज़ब का तूफान उठ आया था। इंतहाई दुरुस्त लहजे में दुर्रे मखनून ने पूछा था,
अब तुम्हें आबाद करना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट मत करना। गहरी सांस भरकर बिलाखिर जो उसने कहा वो दुर्रे मखनून को जलते अलाव में धकेल गया। उसकी आंखें हैरत और दुख से फैल गईं। कह लिया जो कहना था, बोलिए, हो गई आपकी बात मुकम्मल? एकदम टेबल पर दोनों हाथ रखते हुए वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई। ज़ावियर उसके इस कदर बरहम अंदाज पर बिला इरादा सरस बात में हिला गया। तो फिर अब मेरा जवाब सुनिए, जो कुछ आपने मेरे साथ किया उसे मैं कभी माफ़ नहीं कर सकूंगी। आप कातिल हैं मेरा, और अपने कातिल को मैं मोहसिन का दर्जा कभी नहीं दूंगी। वो बोल नहीं रही थी, गोया आग की मानिंद भड़क रही थी। ज़ावियर शशदर सा उठ खड़ा हुआ। आप लम्हा लम्हा जले हैं ना दोज़ख में, तो अब याद रखिए यही दोज़ख आपका मस्कन है और आप हमेशा उसमें जलते रहेंगे। दर हकीकत आपको हमदर्दी मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से है। आप मुझे आबाद करने नहीं, अपने गिल्ड को ख़त्म करने आए हैं। मैं मर भी जाती आपको परवाह नहीं होती। दुख है तो आपको अपने अंदर के मरने का है। आपका ज़मीर आपको कचोके लगाता है, इसलिए आप मुझे अपनाने आए हैं, वरना उस रोज़ आपने मुझे, मेरी आबरू को इस तरह पैरों तले ना कुचला होता। मगर मैं आपको ज़मीर की इस खलिश से, इस गिल्ट से कभी आज़ाद नहीं होने दूंगी, जो आपको आपका जुल्म याद दिलाता रहेगा। ये मेरा वजूद नहीं, एक लाश है, मगर इस लाश को मैं आपके कब्रिस्तान में कभी दफन नहीं करूँगी। अगर आपको मुझसे ज़रा सी भी हमदर्दी है तो प्लीज़ मुझे हराम मौत मरने पर मजबूर मत कीजिएगा। बहुत मुश्किल से, बहुत दुश्वारी के मैंने अपने लख्त लख्त होते वजूद को एक ज़िंदा लाश की शक्ल दी है। मेरे मोहसिनों का कर्ज है ये वजूद, मुझे दोबारा मौत की तरफ मत धकेलें। वो नहीं चाह रही थी कि रोए, मगर आंसू और सिसकियाँ उसकी गिरफ्त से आज़ाद हो चुकी थीं। जिस मौत की तरफ आप मुझे धकेल गए थे उसके मुंह से मुझे मेरे मोहसिन बचा कर लाए हैं। मेरे अल्लाह के बाद सिर्फ़ और सिर्फ मुजफ्फ़र अंकल और उनकी फैमिली का हक़ है मुझ पर। मैं उन लोगों को ना नहीं कह सकती, मगर याद रखें अगर उन्होंने मेरी ज़िंदगी का साथी आपको मुकर्रर करना चाहा तो मैं कुछ भी कर गुजरूँगी। कुछ भी, सुना आपने? कुछ भी। एक आलम गज़ब में वो सामने खड़े ज़ावियर अंसारी से हम कलाम थी। मेहरबानी करके मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। जिस शख्स ने मेरा माजी दागदार किया, मैं उसके साथ मुस्तकबिल में कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती, कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप में ज़रा सी भी हमियत और गैरत बची हो तो प्लीज़ आइंदा मेरे सामने मत आइएगा। आपको देखती हूँ तो मेरे ज़ख्म हरे हो जाते हैं। अपने कातिल को तो मैं शायद माफ़ कर देती, मगर मेरे बाबा और मेरी मामा के खूनी को मैं भला कैसे माफ़ कर सकती हूँ। सो प्लीज़ लीव मी अलोन, चले जाएं, मेरी इस मौत से बदतर ज़िंदगी से निकल जाएं, सांस लेने दें मुझे भी। प्लीज़ इतना जुल्म ना करें कि मेरी हर सांस एक बद्दुआ बन जाए आपके लिए। कभी गुस्से में बोलने लगती और कभी अचानक रो पड़ती, कभी हुक्मिया ज़िंदगी से निकल जाने को कहती तो कभी हाथ जोड़कर इल्तिजा करने लगती। ज़ावियर ने अपने हाथों मचाई इस तोड़ फोड़ को उसकी ज़ात का हिस्सा बना देखा तो जैसे ढहस आ गया। दुर्रे मखनून की हालत दगरगूं थी, वो थक कर जैसे कुर्सी पर गिर सी गई। क्या कोई गुंजाइश नहीं? बेहद मायूसी से ज़ावियर अंसारी ने टूटे हुए लहजे में कहा तो गहरी गहरी सांसें लेती दुर्रे मखनून ने भड़क कर उसे देखा था। अपने सीने पर हाथ रख कर कहें, क्या कोई गुंजाइश निकलनी चाहिए? क्या कोई गुंजाइश छोड़ी है आपने? आप भी तो बहनों वाले हैं। अगर कोई एनी के साथ ऐसा करता तो क्या गुंजाइश निकाली जा सकती उसके लिए? बोलिए, जवाब दीजिए। उसका कड़ा सवाल ज़ावियर अंसारी की उम्मीद की आखिरी शमा भी बुझा गया तो वो कुछ देर यूं ही देखता रहा, फिर थके थके अंदाज में उसे नज़रों की गिरफ्त में ले लिया। तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं मेरे पास। शायद जो तुम कह रही हो वही सही है। मैं जानता हूँ मैं माफ़ी के लायक नहीं, न तुम मुझे कभी माफ़ कर सकोगी। फिर भी तुमसे दरख्वास्त करता हूँ, हो सके तो मुझे भुला देना। काश मैं ऐसा कर सकती। उसके दिल से हुक उठी थी। शायद इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी कुछ आसान हो सके। रह गई तुम्हारी आंटी की बात तो उन्हें मैं समझा लूँगा, तुम पर कोई हर्फ नहीं आने दूँगा। कम अज़ कम इतना तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। टूटा हुआ शिकस्तगी से भरपूर लहजा था उसका। जुमला मुकम्मल करके वो रुका नहीं और इमारत के अंदरूनी हिस्से की जानिब बढ़ गया था। दुर्रे मखनून ने जलथल हुई आंखों से उसे जाते हुए देखा था और फिर उसे लगा वो ढह सी गई है। दिमाग जैसे शल हो गया था। फिर न जाने कितनी देर बाद सायरा बेगम अंदर से बरामद हुई थी। एक लम्हे को उन्हें देखकर उसका दिल उछलकर हलक में आ गया था, मगर वो जब उसके पास आई तो उनके लबों पर फैली मुस्कुराहट ने उसे अचंभे में डाल दिया था। पता नहीं ज़ावियर ने उनसे क्या कहा था, वो खासी मुतमईन लग रही थी। रास्ते में एक आध बार उन्होंने ज़ावियर से मुतल्लिक सवाल भी किया, जिस पर उसने गायब दिमागी से सर हिला दिया था। उसे बगैर बताए यहाँ लाने पर वो बिल्कुल भी नादिम नहीं थी। दुर्रे मखनून ने तासुफ से उन्हें देखा और सीट से सर टिका कर आंखें मूंद लीं। गुजरे चंद लम्हों में उसकी हस्ती ज़ेरो ज़बर हो गई थी। यूँ मालूम हो रहा था जैसे वो मीलों का सफ़र पा प्यादा करके आई हो। थकन हद से सिवा थी।
घर पहुंचने पर खासी रौनक ने उसका इस्तकबाल किया था, जिसे नज़रअंदाज करके वो तमाम इखलाक और एहतियात बालाए ताक रखती ऊपर कमरे में आकर बंद हो गई थी। कल रात वो ठीक से सो नहीं सकी थी। इजहार साहिब की नवाजिशों और बेतकल्लुफ़ अंदाज ने आजकल दिन का चैन और रातों की नींद उड़ा रखी थी। लिहाजा नीचे के पोर्शन से आती आवाज़ों और म्यूज़िक के शोर के बावजूद वो रोते रोते सो गई थी। सायरा बेगम को मालूम था कि अब वो नीचे नहीं आएगी, और ना ही वो चाहती थी कि मुजफ्फर साहब या दादी उसकी उतरी सूरत देखकर उनके आज के मार्के के बारे में जान सकें। इसलिए खुद ही उसकी थकन और सर दर्द का बहाना कर दिया था। यही वजह थी कि डिनर टेबल पर उसकी गैर मौजूदगी पर जिसने भी दुर्रे मखनून की बाबत सवाल किया, उन्होंने पहले से सोचा हुआ जुमला दोहराकर सबको मुतमईन कर दिया। रात के गालिबन 1:30 बजे का वक्त था जब उसकी आंख खुली थी। दादी ने उसके सिरहाने गर्म दूध लाकर रखा था जो अब ठंडा हो चुका था। भूख तो उसकी पहले ही उड़ी हुई थी। बीच रात में इस तरह आंख खुलते ही गुजरे चंद घंटों कबल की रोदाद तसव्वुर में किसी फिल्म की तरह जिंदा होकर उसकी बची खुची नींद भी उड़ा गई। यूं भी 5 घंटे सो जाने के बायस अब इतनी जल्दी नींद आती भी कैसे। ईशा की नमाज कज़ा हो गई थी। वो वज़ू करके मुसल्ले पर आ खड़ी हुई, और फिर कितनी ही देर वो नमाज के बाद रो रो कर दुआ करती रही, अपने सुकून के लिए और घर वालों की खुशियों के लिए। मांगने के लिए उसके पास बहुत सी दुआएं थीं, जिन्हें न जाने मुस्तजाब होना भी था कि नहीं। घर में खामोशी का राज था। वो चुपचाप लाउंज में खुलने वाले टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। 13वीं का चांद टेरेस के बिल्कुल ऊपर जगमगा रहा था। नीचे लॉन के लैंप से बिखरती रोशनी उस चांदनी के आगे मांद थी। वो टेरेस पर पड़ी एक कुर्सी पर यूं ही आ बैठी। चांदनी रात, अवाइल मार्च की हल्की सी खुनक हवा और सितारों से भरा आसमान उसे कुछ भी मुतवज्जा नहीं कर सका था। तहां वो खुद को कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। ज़ावियर से होने वाली मुलाकात याद करके वो कितनी ही देर खुद पर हैरान होती रही। आज कितने सालों बाद उसने लगातार इतना बोला था, गुस्सा किया था, अपने अंदर दबे उस गैस को बाहर निकाला था। उसे दिल का बोझ कुछ कुछ हल्का महसूस हो रहा था। क्या हो जाता ज़ावियर अंसारी जो तुम मेरी ज़िंदगी में ना आए होते। अगर आ ही गए थे तो मुझे इस हाल को पहुंचाने के बाद कम से कम आज तो मेरे सामने ना आ खड़े होते। आखिर क्या हो जाता अगर अल्लाह मेरा सामना तुमसे ना कराता तो। कुर्सी के ऊपर पांव रखे, घुटनों के गिर्द बाजू हमायल किए, उसने अपनी पेशानी घुटने पर टिकाई हुई थी कि अपने अकब में किसी की आहट महसूस करके बेइख्तियार सर ऊंचा करके गर्दन मोड़ कर देखा था। लम्हे भर के लिए जैसे धड़कन रुक सी गई थी। इजहार साहब का भूत उसके हवासों पर सवार था, मगर लाउंज के दरवाजे के करीब आते अकरमा को देख कर रुकी हुई सांस बहाल हुई। उसके चेहरे पर यकदम खौफ की जगह सुकून उतरा जो अकरमा की नज़रों से मख्फी नहीं रहा था। एंड टेरेस के बीच बैठी वो फिलवक्त चांदनी में मुकम्मल तौर पर नहाई हुई थी। बाल अभी तक खुले हुए थे जो चांदनी की रोशनी में खूब चमक रहे थे। अकरमा दरवाजे तक आकर रुक गया। मैं आए प्लीज़, शाइस्तगी से सवाल करता वो दहलीज पर रुक गया था। यह आपका अपना घर है, आपको इजाज़त की क्या ज़रूरत। सर हिलाकर इस बात का तासुर देते हुए वो बेइख्तियार कह गई थी। अकरमा ने बगौर उसे देखा। हाँ, मगर आपकी तन्हाई में मुखल होने की इजाज़त बहरहाल मुझे लेनी होगी। दोस्ताना मुस्कुराहट समेत कहते हुए वो उसके सामने पड़ी कुर्सी के पास आ खड़ा हुआ था। अकरमा की मौजूदगी के ख्याल से दुपट्टा सर पर लेती दुर्रे मखनून जवाबन खामोश हो गई। बाय द वे, आप सारी रात सोई ही नहीं या मेरी तरह बीच रात में आँख खुली है। चंद सेकंड्स की खामोशी के बाद अकरमा ने ही सवाल किया था। बस ऐसे ही नींद टूट गई थी, उसने नज़र चुराकर जवाबन कहा। अकरमा उसे एक नज़र देखता कुर्सी पर आ बैठा। अब वो बिल्कुल मुकाबिल थी। अच्छा तो चलिए सुनाइए, रिलैक्स से अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए उसने कहा। दुर्रे मखनून ने ना समझने वाले अंदाज में उसकी तरफ नज़र उठाई। क्या सुनाऊं? हैरत और उलझन आमेज सवाल लबों पर दर आया था। कुछ भी, गज़ल या नज़म जिसकी भी ताज़ा आमद हुई हो। सीने पर बाजू लपेटते हुए अकरमा गोया हमातन गोश था। दुर्रे मखनून शर्मिंदगी से होंठ काटने लगी थी। मैं शायरी नहीं करती, दबे दबे लहजे में जवाबन कहा तो अकरमा बेइख्तियार मुस्कुराया। जाहिर है शायरी तो आपके लिए की जाती होगी। ओह, मैं समझा शायद यहाँ इतनी रात को इस चांदनी में बैठकर आप कुछ शेर वगैरह कह रही होंगी। यकीनन वो खासे अच्छे मूड में था। दुर्रे मखनून ने बिला इरादा उसके चेहरे की तरफ हैरत से देखा। वो उसकी तरफ ही मतवज्जा था। नज़र मिलने पर पहले तो धीमे से मुस्कुराया, फिर उसके चेहरे पर छाए तहय्युर को देख कर संजीदा हो गया। कम ऑन, आई वॉज जस्ट जोकिंग। अंदाज यकीन दिलाने वाला था। दुर्रे मखनून झींप कर सर झुका गई। आई नो यू वर। दुर्रे मखनून की तरफ से एक बार फिर मुकम्मल जवाब आया था। अकरमा नोट किए बगैर ना रह सका। कुछ देर दोनों के माबैन फिर से खामोशी हायल हो गई थी, जिसे अकरमा ने तोड़ा। आप डिनर टेबल पर नहीं थी आज, खाना खाया आपने या अभी तक हालत सोम में हैं?
हल्के से तंज के साथ अगला सवाल हुआ था। दुर्रे मखनून ने गहरी सांस भरकर ऐन आज सामने आसमान पर चमकते चांद पर निगाहें जमा दी। कुछ खास भूख नहीं थी मुझे, इसलिए उसे कुछ तो कहना ही था। मध्यम आवाज़ में पशेवानी से एक बाले जुर्म किया। मुझे आपकी ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि आखिर आप दूसरों के किए की सज़ा खुद को क्यों देती हैं। मतलब? उसने कदरे रुख मोड़कर उसकी तरफ देखा था। मतलब ये कि चची जान आपकी ख्वाहिश और मंशा के बगैर आपको मिस्टर जावियर से मिलवाने ले गईं, तो इधर एहतजाज के तौर पर आपने खाने का बाइकाट कर डाला, जबकि आप जानती हैं कि डिनर और डिनर के बाद की मेडिसिन आपके लिए कितनी ज़रूरी है। घनी मुड़ी हुई पलकों वाली आंखों के इस्तजाब के जवाब में उसने संजीदगी से वजाहत की तो दुर्रे मखनून के दिल की धड़कन यकदम तेज़ हुई। आपको कैसे? वो मुताज्जब से जुमला मुकम्मल ना कर सकी। वली की अपने क्लाइंट से मीटिंग थी क्लब में, वो मुझे भी ज़बरदस्ती ले गया। वहीं देखा था आपको मिस्टर जावियर के साथ। टेरेस के आखिरी सिरे पर लगी ग्रिल पर नज़र जमाते हुए उसने वजाहत की तो दुर्रे मखनून होंठ काट कर कुछ सोचने लगी। चेहरे पर नागवारी का गहरा तासुर था। वैसे मेरा ख्याल है चची जान ने कुछ गलत तो नहीं किया। ज़िंदगी आपकी है, इस चीज़ के बारे में फ़ैसला भी आपका होना चाहिए। ऐसे में अगर उन्होंने आपको और मिस्टर जावियर को 1 to 1 मुलाकात का मौका दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको नाराज़ होना चाहिए। बिना देखे ही वो उसके मूड को उसकी खामोशी से पा गया था। दुर्रे मखनून की आंखों में जावियर के जिक्र से जलन होने लगी। रह गई बात चचा जान की, तो वो आपके फ़ैसले की इज्जत करते हैं। अगर आपका जवाब हाँ में होता तब भी, और अब जबकि आपने इनकार कर दिया है तब भी। आपके ग्रिल से नज़र हटाकर उसने दुर्रे मखनून को बराह रास्त निगाहों की गिरफ्त में लिया तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ती देखीं। यकीनन उसका फिक्रा उसके हवास उड़ा ले गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अकरमा आज के वाक़ये से वाकिफ़ होगा, और ना सिर्फ बाखबर था बल्कि उसने बराह रास्त उसके बारे में तबसरा भी कर डाला था। आपके जाने के बाद पार्किंग एरिया में मुठभेड़ हुई थी मिस्टर जावियर से। उनके चेहरे की मायूसी आपके इनकार का खुला सबूत थी। इससे पहले कि बहरे तहय्युर से निकलकर वो इस्तफसार करती उसने खुद ही तफसील बताई तो वो जो ताज्जुब से सामने बैठे अकरमा को देख रही थी बेचैनी से उठ खड़ी हुई। क्या आपको लगता है कि मैंने गलत किया? ज़रा से तवक्कुफ़ के बाद उसने परेशानी से सवाल किया था। चेहरे पर तफक्कुर तहरीर था, जैसे अपने फ़ैसले पर एतमाद ना हो। ऑफ कोर्स नॉट, उसने सामने खड़ी दुर्रे मखनून के सवाल पर मजबूत लहजे में कहा। यूँ भी सवाल गलत या सही का नहीं, अपने हक़ के इस्तेमाल का है। मुझे खुशी हुई कि आपने अपनी ज़िंदगी के इस अहम फ़ैसला को खुद करने की जुर्रत की। तौसीफ़ी लहजे में कहता वो भी उठ खड़ा हुआ तो दुर्रे मखनून बेख्याली में हाथों की उंगलियां मसलते हुए उसे देखने लगी थी। फिर थकन सदा लहजे में बोली, लेकिन मीमी और शिराजी अंकल को तो दुख होगा ना? मेरा नहीं ख्याल कि उन्हें कोई दुख होगा। यूँ भी जिनसे हम प्यार करते हैं उनकी खुशी हमें हमेशा प्यारी होती है। और इतना तो मैं यकीन से कह सकता हूँ, चचा जान को आपसे बहुत मोहब्बत है। मैंने उन्हें रिदा और सैफ से भी ज़्यादा आपके लिए फ़िक्रमंद पाया है। यही दुख है कि मैं उनके लिए एक फ़िक्र, एक परेशानी हूँ। उसने दुख से सोचा मगर कह नहीं सकी। अकरमा ने उसे मुतफक्किर और आज़रदा देखा तो हिम्मत बंधाने के अंदाज में समझाने लगा। बलीव मी, चचा जान को आपके इनकार से कतन दुख नहीं होगा, बल्कि उन्हें तो खुशी होगी कि आपने उनको खुश करने के लिए खुद पर कोई जबर नहीं किया। यूँ भी ज़िंदगी इंसान को सिर्फ एक बार मिलती है, उसे समझौते की नज़र करना अक्लमंदी नहीं। उसका लहजा हलावत से भरपूर था, जैसे अपने किसी स्टूडेंट को कोई मुश्किल सवाल नरमी से समझा रहा हो। और दुर्रे मखनून जो कई घंटों से तजब्जब का शिकार थी, कभी लगता उसने सही किया और कभी लगता कि गलत। फिक्र थी कि सबको पता चलेगा तो क्या होगा। अकरमा के समझाने पर दिल को हल्का होता महसूस करने लगी थी। उसे एहसास भी नहीं हो सका कि वो बेख्याली में अकरमा से क्या क्या कह गई है और कितने ही हसास मौजू पर उनके दरमियान गुफ्तगू हो रही है। दिल का बोझ कहीं तो हल्का करना ही था। आखिर दिल की बात वो किससे करती? सोहा आजकल रिदा की शादी में मसरूफ़ थी। वो कि सारा दिन साथ होती थी, मगर तन्हाई और फुर्सत की शदीद किल्लत थी उसके पास। बाकी घर में किसी और से वो इतनी बेतकल्लुफ़ हरगिज़ ना थी कि इस मौजू पर बात कर पाती। दादी अलबत्ता उससे बहुत कुछ कह सुन लेती थी, मगर ख़ुद से वो इनसे भी कुछ नहीं कह सकती थी। रह गया अकरमा, तो आम मौज़ूआत पर उससे हम कलाम होना उसे कारे गिरां लगता था। कुछ आके इस टॉपिक पर तबादला ख्याल करना। मगर इस वक्त जब वो शदीद जहनी खलफिशार और अंदरूनी इंतशार का शिकार थी, लाशऊरी तौर पर उसके सामने खुल गई थी। इसका क्रेडिट अलबत्ता अकरमा को ही जाता था, जब बड़ी से बड़ी बात कुछ इस आसानी से कह जाता कि इस मुखातिब बिला इरादा दिल खोलकर उसके सामने रख दें। गुजरे चंद माह में उसने दुर्रे मखनून के दिल में अपने लिए बहुत इज्जत पैदा कर ली थी। अपने हर सवाल का जवाब उसे अकरमा से मिल जाता था और ये बात वो इग्नोर नहीं कर पाती थी। अभी भी उसके समझाने का असर था कि वो खुद को हल्का महसूस कर रही थी। ताहम शिराजी अंकल की फ़िक्र का सोचकर दिल मुतमईन नहीं हो पा रहा था। कम ऑन दुर्रे मखनून, बी ईज़ी। मैंने कहा ना कि कोई आपसे खफा नहीं होगा।
آپ نے کچھ غلط نہیں کیا، اٹس یور لائف، اسے خود سے جئیں، دوسروں کے ڈکٹیشن سے نہیں۔ انسان کی زندگی میں کبھی کبھی ایسے دو راہیں ضرور آتے ہیں جب اسے اپنی اور اپنوں کی خوشی میں سے کسی ایک کو چننا پڑتا ہے، اپنے لیے خود فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور ایسا ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا اور لہجہ مضبوط تھا۔ در مکنون نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور بے اختیار اس کی زبان سے وہ سوال پھسل پڑا جو اکرما کو متعجب کر گیا۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ نے اپنی زندگی کا اس قدر اہم فیصلہ دادی پر کیوں چھوڑا ہے؟ گزرے اتنے ماہ میں پہلی بار اس نے در مکنون کے لبوں سے کسی اور کے بارے میں سوال سنا تھا، اور وہ بھی اپنے بارے میں۔ حیرت تو ہونی ہی تھی۔ ایک لمحے کو بھویں اچکا کر اسے غور سے دیکھا، جو اس کھلتی چاندنی میں کسی مصور کا شاہکار، کسی شاعر کی غزل کی طرح حسین لگ رہی تھی، اور اس پر کمال یہ کہ اپنے حسن سے کس قدر غافل اور بے خبر تھی۔ ولی ٹھیک کہتا ہے، یہ حسن تو بڑے سے بڑے زاہد کا زہد ٹھکانے لگا سکتا ہے۔ گہری سانس بھر کر اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔ قدرے توقف کے بعد مدھم آواز میں بولا، میری بات اور ہے، میرے اندر سے وہ جواب نہیں آ رہا جو آپ کو خود سے مل چکا ہے۔ آئی ایم ہیلپ لیس۔ کندھے اچکا کر وہ ریلنگ سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ در مکنون نے اس کی بات پر بڑی حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ کیا آپ کو خولا آپی اچھی نہیں لگیں؟ بے اختیار ایک اور سوال لبوں سے پھسلا تھا۔ اکرما کو اس کا اس طرح اپنی ذاتی زندگی میں دلچسپی لینا خاصا تعجب خیز لگا تھا، مگر اس نے اس کا اظہار نہیں کیا اور اطمینان سے بولا، یہ میں نے کب کہا؟ گویا اچھی لگی ہیں۔ اس بار در مکنون کے لہجے میں امید تھی۔ یہ بھی نہیں کہا میں نے، اب کہ وہ مسکرایا۔ در مکنون نے مایوسی سے سر جھٹکا۔ مطلب آپ کنفیوز ہیں؟ کیا نہیں ہونا چاہیے؟ الٹا سوال کیا تو در مکنون لاجواب سی ہو گئی۔ پتہ نہیں، مگر مجھے اتنا ضرور معلوم ہے کہ خولا آپی بہت اچھی ہیں۔ دبے دبے لہجے میں کہا تو اکرما نے دلچسپی سے اسے دیکھا۔ مثلاً کیا کیا اچھائیاں ہیں ان میں؟ کچھ روشنی ڈال سکتی ہیں آپ؟ ساری اچھائیاں ہیں ان میں۔ اس بار در مکنون کے لہجے میں وثوق تھا اور انداز میں سادگی۔ اکرما بے اختیار مسکرایا۔ مثلاً؟ انداز غیر سنجیدہ تھا، مگر در مکنون گویا محسوس نہیں کر سکی اور کچھ سوچ کر کہنے لگی، وہ خوبصورت ہیں اور ذہین ہیں، مزید میچیور ہیں، اور سب سے بڑھ کر دل کی بہت اچھی ہیں۔ اس کے لہجے میں خولا کے لیے ستائش تھی اور چہرے پر دبا دبا جوش۔ اکرما کے لیے یہ منظر حیرت انگیز تھا۔ اور آپ کے خیال میں جن خاتون میں یہ چار صفات موجود ہوں، مجھے ان سے شادی کر لینی چاہیے؟ شوق لہجے میں سوال ہوا تو در مکنون اپنے خیال سے چونکی، گویا وہ محض مذاق کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر یکدم سخت تاثر ابھرا تھا۔ میں کسی اور کی نہیں، صرف خولا آپی کی بات کر رہی ہوں۔ قدرے خفگی سے کہہ کر اس نے منہ پھیر لیا تو اکرما نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑا۔ کمال ہے مس در مکنون، مجھے آپ سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ ہنسی روک کر اس نے کہا تو در مکنون نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن، محض ان چار خصوصیات کے سہارے زندگی نہیں گزرتی میڈم۔ کچھ اور بھی ہوتا ہے جو انسان اپنے پارٹنر میں دیکھنا چاہتا ہے، اور وہ ہوتی ہے کمپیٹیبلٹی۔ اور جب آپ کا پارٹنر کمپیٹیبل ہوتا ہے نا، تو پھر بھلے وہ خوبصورت ہو نہ ہو، ذہین ہو نہ ہو، میچیور ہو نہ ہو، ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں۔ کچھ آئی سمجھ میں؟ بات مکمل کر کے وہ پھر ہولے سے ہنسا تو در مکنون نظر جھکا گئی۔ چلیے اب آپ اپنے چھوٹے سے دماغ پر زیادہ زور نہ ڈالیں اور جا کر ایک گلاس دودھ گرم کر کے پئیں اور پھر فوراً سونے کے لیے کمرے میں چلی جائیں۔ چلیے شاباش۔ اچھی خوراک کے ساتھ پوری نیند بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے۔ یکدم اس نے لہجہ بدل لیا تھا۔ انداز ایسا تھا جیسے کسی چھوٹے سے بچے سے مخاطب ہو۔ در مکنون کی آنکھوں میں اس اچانک تبدیلی پر کچھ حیرت ابھری، جسے اس نے یکدم رخ موڑ کر چھپانے کی کوشش کی اور اس کی ہدایت کے مطابق نہ چاہتے ہوئے بھی اندر لاؤنج کی طرف قدم بڑھانے لگی۔ وہ بھی اس کی تقلید میں قدم اٹھا کر اس کے برابر چلا آیا تھا۔ بٹ تھینکس اینی وے در مکنون، مجھے اچھا لگا کہ آپ نے میری اچھی زندگی کے لیے سوچا، مجھے مشورہ دیا۔ آئی ہوپ میں ان لائنز پر سوچنے کی کوشش کروں گا۔ آپ کے خلوص کے لیے آئی ایم ریئلی گریٹفل۔ ذرا سا رک کر اس نے کہا تھا۔ در مکنون نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ یہ شخص اور اس کا انداز اسے ہمیشہ متاثر کرتا تھا۔ نرمی اور خلوص سے مزین اس کا لہجہ، اس کی آنکھوں سے جھانکتی شفافیت، اس کے دل میں ڈیرا جمائے خوف کو لمحے میں اکھاڑ پھینکتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا اس طرح رک کر شکر گزاری کا اظہار کرنا اسے اچھا لگا تھا۔ لبوں پر بے اختیار مبہم سا تبسم بکھر گیا۔ اس بھرپور چاندنی میں در مکنون کی مسکان نے اس کے حسین چہرے کو کچھ اور روشن کیا تھا۔ لمحے بھر کے لیے اکرما شیرازی مبہوت سا اسے دیکھے گیا۔ از دس دا فیس ہو لانچ دا 1000 شپس؟ کسی کتاب میں پڑھا ہوا یہ جملہ یکدم ذہن میں ادھم مچا گیا تھا، اور اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، در مکنون سہج سہج قدم اٹھاتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اکرما نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور یکدم سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا۔